Welcome back to all of you. Students, in the previous class we have discussed the topic the aspiration of women, in which we have find out the condition of women through the European society, and today we are going to discuss the topic debates within the Christianity. In this topic, debates within the Christianity, we are going to find out what was the condition of the religion throughout the Europe during the Renaissance time period. So simply when we talk about the Christianity, and it is one of the part of the culture because it is related with the religion. Trade and travel, military conquest, and diplomatic contacts linked Italian towns and courts with the world beyond. As you have seen that the prosperity of the Italian city took place due to the economic betterment or the trade, as well as some of the parts had been conquered by the different rulers. They also developed the cities. Church also played an important role in it. These all that had been accepted by the people. Generally, it had been accepted by the people who were the literate. जबकि एक गांव में जो इलिटरेट पीपल थे वहां तक ये अभी तक नहीं पहुंचा था. Many scholars in the universities in North Europe were attracted to humanist ideas. जो humanist ideas रोम और इटली से डेवलप हुए थे, that had been accepted or that attracted the people towards it. And like their Italian colleagues, they too focused on classical Greek and Roman text along with the holy books of the Christians. सेम यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पुराना सिस्टम था, जो एंशियंट उनके जो रिलीजियस बुक्स थे, जो कंटेंट थे, वो सभी लोगों ने दोबारा फॉलो किया और उनके थ्रू अपने आप को डेवलप किया. एंड दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन in the way laid down in the ancient text of their religion. यहाँ पे इस चीज को फोकस किया गया कि जो क्रिश्चियनिटी का पुराना जो सिस्टम बना हुआ था उसको फॉलो करना चाहिए, मुकाबले की जो अननेसेसरी रिचुअल्स हैं उसको उन्होंने छोड़ने की बात करी. बिकॉज उसमें उन्होंने ये तर्क दिया कि ये सब जो है बाद में इस साधारण सिंपल से जो रिलीजन था उसको जानबूझ के उसमें ऐड करके उसको डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स बनाया गया. द पीपल आल्सो इंस्पायर्ड बाय द बिलीफ इन द डिस्टेंट गॉड हु क्रिएटेड मैन बट अलाउड हिम कंप्लीट फ्रीडम टू लिव हिज लाइफ फ्रीली इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हियर एंड नाउ. उस समय एक विचारधारा जो थी वो ये डेवलप हुई कि जो गॉड है उसी ने ह्यूमन बीइंग को बनाया है और उसको फुली फ्रीडम दिया हुआ है, और साथ ही साथ इस बात पे फोकस किया कि इंसान अपनी खुशी को यहीं पर इसी दुनिया में ही ढूंढ सकता है, इसके लिए उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है. और इन चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले उस समय के समाज में. उसमें जो एक सबसे अहम रोल रहा वो रहा क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थॉमस मोर इन इंग्लैंड, और जो दूसरे थे वो थे इरास्मस हु वाज बिलोंग टू द होलैंड. They felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people. सिंपल सा ये था कि जो चर्च थे वो इतने ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गए थे कि दे बिकम द सेंटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन इस आधार पे किया जाता था कि लोगों को जो है उनको उन्हीं की इच्छा के अनुसार से उनसे जो है जबरन धन वसूला जाता था. One of the favorite method of the clergy was to sell indulgences documents. अब ये indulgences क्या होते थे? Indulgences, these were the documents that apparently freed the buyer from the burden of the sins he had committed. ये ऐसा ही था जैसे कि पाप करो और गंगा में नहा लो. जो डॉक्यूमेंट होता था उसके थ्रू जो है वो जो भी उनके अपराध होते थे, जो उनके पाप होते थे, उन सब से उनको एक तरह से मुक्ति दिलाने का वो सिस्टम होता था. और इसके थ्रू भी वो जो है चर्च जो है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को में पैसे कमाने का तरीका यूज कर रखा था.
In almost every part of Europe, people rebel against the tax imposed by the church. They were pleased when the humanists pointed out that the clergy's claim to judicial and fiscal power originated from a document called Donation of Constantine. जो ये चर्च का सिस्टम था और जो क्लर्जी जो अभी तक टैक्सेस वसूल करते थे और साथ ही साथ जो उन्होंने जुडिशियल और फिजिकल पावर अपने हाथ में ले रखी थी, ये सभी उन्होंने लिए थे। एक डॉक्यूमेंट था दैट वाज नोन एज द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन, इफ यू रिमेंबर इट, ही वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन रूलर दैट वाज बिलोंग टू द रोम। और इसी कॉन्स्टेंटाइन के समय में ये सिस्टम डेवलप किया गया कि जो क्लर्जी है और जो चर्च है, दे गेट द टैक्सेस। और इसको बाद में जो रिफॉर्मर्स हुए उस समय के, उन्होंने बोला कि ये जो है बाइबल में नहीं है। जो बाइबल की जो बुक थी, जब उसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, तो दे फाउंड दैट इट हैज़ बीन नॉट मेंशन्ड इन द बाइबल, इट वाज लेटर एडेड इन इट, एंड दैट्स व्हाई दे इग्नोर इट और दे condemned it. Humanist scholars were also point out that this was not genuine and had been forged later. इसी में आगे बढ़ते हुए एक और सुधार देखने को मिलता है जो कि ईयर 1517 में मिला। एक जर्मन मॉन्क थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर ने एक कैंपेन लॉन्च किया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, और उन्होंने इस बात पे तर्क दिया और जोर दिया, ए पर्सन डिड नॉट नीड प्रीच टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड, कि किसी भी व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट होने के लिए या भगवान की शरण में जाने के लिए किसी पुजारी या पंडित की जरूरत नहीं है। अगर आपका भगवान में विश्वास है, आपका फेथ है भगवान में, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें किसी प्रीस्ट या चर्च या किसी ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है। और ये जो मूवमेंट है, ये बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिला। इस मूवमेंट को नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और इस मूवमेंट की वजह से ही जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड थे, उन्होंने लगभग अपने जो कनेक्शन थे पोप से और कैथोलिक चर्च से, उसको ख़त्म कर लिए थे, उसको समाप्त कर लिए थे। द रिफॉर्मर्स आल्सो हैड ग्रेटर पॉपुलर अपील इन टाउन्स। इनकी जो बातें थी वो टाउन्स में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लोग उसके ऊपर फोकस भी करते थे। वेयर एज इन रूरल एरियाज द कैथोलिक चर्च मैनेज टू रिटेन इट्स इन्फ्लुएंस, जबकि कैथोलिक चर्च जो है अपने प्रभाव को जो है उस वहाँ पे बनाए रखा जो रूरल एरियाज थे। अब इफ़ यू रिमेंबर, तो मार्टिन लूथर आल्सो wrote a thesis against this Catholic church that was known as the 95 thesis of Martin Luther. Now, except than the Luther, there were some other reformers were also, like the Anabaptist. They were more radical as compared to the Martin Luther King. Martin Luther, who was quite polite, मतलब वो एक विनम्र स्वभाव के थे, और वो जो भी रिफॉर्म्स चाहते थे वो एक सिंपल वे से चाहते थे। जबकि जो एनाबैप्टिस्ट या जो रेडिकल्स थे, वो चेंजेस चाहते थे बड़े लेवल पे। वो चाहते थे कि लोग रिबेल करें और लोग इस प्रॉब्लम को एकदम से ही सॉर्ट आउट करें। लूथर जो थे, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट सपोर्ट द रेडिकलिज्म। ही कॉल्ड अपॉन जर्मन रूलर्स टू सप्रेस द पीजेंट्स रेबेलियन। जो उस समय के रिबेल्स हुए, उसको उन्होंने दबाने की बात भी कही वहाँ के जर्मन के रूलर से। बट रेडिकलिज्म, उसने अपने आप को सर्वाइव किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाके दे आल्सो मर्ज्ड विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में द रूलर्स एंडेड द कनेक्शन विद द पोप, क्योंकि पोप का जो है इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से राजा भी जो है इस बात को लेके बड़े परेशान थे, या एक तरह से पोप को पसंद नहीं करते थे। एंड नाउ द किंग बिकम द हेड ऑफ द चर्च। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेन और इटली, द चर्चमैन to improve themselves so they can get respect in the society, they emphasize the need for a simple life and service to the poor. उन्होंने अपने एक साधारण जीवन पे जोर दिया, और साथ ही साथ जो गरीब थे, जो दुखी थे, जो परेशान थे,
उन लोगों की हेल्प करने के लिए, उन लोगों की सेवा करने का भाव जागृत किया, ताकि जो अभी रिनेसा टाइम पीरियड में उनका जो सोशल स्टेटस जो है, जो रिस्पेक्ट है, वो कम हो गया था, उसको वो दोबारा गेन कर सके। स्पेन में ही एक पर्सनालिटी है, इग्नेटियस लोयोला, is an attempt to combat Protestantism, set up the Society of Jesus in 1540। इन्होंने एक सोसाइटी डेवलप करी 1540 में, और जो इसे फॉलो किए, हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जेसिस्ट, एंड द मिशन ऑफ द जेसिस्ट वाज टू सर्व द पुअर पीपल and to widen their knowledge of other cultures। और this was all about that we have seen throughout the topic। So simply, if we conclude the topic, we find that the Christianity also go through the several kind of reforms. There were reformers who played an important role to make it much or more better as compared to the earlier time. What was the superstitions, rituals, and the other unnecessary things had been included in the Christianity that had been excluded with these reformers and by their deeds. So students, this is all about the topic of today. Let's have some questions. Question number 1. What were the results of the Protestant Reformation movement? Write any two. So you have to write what were the changes took place because of this Protestant Reformation movement. Second is, what do you know about Thomas More? It's a simple question. And the third is question that who was Martin Luther? What is his movement against the Catholic Church known as? That's all. Thank you. Have a nice day.